بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے ہو سکے تو فین بند کر دیجیے تو آواز سننے کو تھوڑا ٹھیک ملے، پنکھا بند کروا لیجیے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے۔ یہ ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ جو عنوان معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر معراج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا۔ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ جبریل آئے، براق لایا گیا، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ یہ بچے ادھر دیکھو توجہ سے، ادھر دیکھو، ہمارے کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر ذرا بھی نہیں دیکھنا۔ ہم جانتے ہیں کہ براق لایا گیا، جبریل آئے اور اللہ کے نبی مسجد حرام سے براق پر جبریل کے ساتھ تشریف لے گئے، یہ جانتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک نے اس کو نہیں فرمایا کہ پاک ہے جبرائیل جو براق پر محمد کو بٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، نہیں کہا، بلکہ اس سفر معراج کو، اس سفر کو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پاک میں ہوں کہ میں اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ لے جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام، لیکن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں لے جا رہا ہوں۔ یہ وہ خوبصورت اور عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سفر کو کوئی ایزی، اس سفر کو کوئی احتیاط، اس سفر کو کوئی کامن سفر نہ سمجھا جائے کہ جبرائیل کے ساتھ نبی گئے سیر کر لیے، نہیں، نبی گئے نہیں ہیں، نبی کو اللہ پاک لے گئے۔ گئے اور لے جانے میں فرق یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ چار مینار چلے جائیں تو ہو سکتا ہے جانے میں کدھر کدھر کے ہو سکتے ہیں آپ، لیکن اگر میں خود لے جاؤں اپنے ساتھ تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرا دیکھا ہوا ہے۔ ذرا سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ کیا کر رہے ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سب سن رہے ہیں نا؟ ہواؤں کو نہیں سنانا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں نا؟ بس بیٹھیے آرام سے۔ اللہ فرما رہا میں لے گیا ہوں۔ اس لیے اس سفر معراج کے اس سورہ بنی اسرائیل کی فرسٹ آیت کریمہ سے ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی نہیں ہوئی، کیسا ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، ذرا یہ سوچنے میں سے پہلے معراج ہوئی نہیں، معراج کروائی گئی ہے۔ ہوئی میں تحقیق کر سکتے ہیں، جیسے میں بولوں میں گیا تھا چار مینار، میں گیا تھا، ہو سکتا، لیکن آپ کے سامنے وہ شخص کھڑا ہو جو چار مینار کا مالک ہو اور کہے کہ میں لے گیا، اب آپ کو شک ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے۔ جانتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر مہینے سے زیادہ، 1.5 مہینے کا سفر ہے قریب۔
और रात के थोड़े से हिस्से में ले गया। अकल में आने वाली चीज है? नहीं। इसी को बोलते हैं मोजेजा। जो चीज आपके अकल में ना आए उसी को बोलते हैं मोजेजा। मालूम हुआ कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक भी जाना ये मोजेजा है। इसी से कहा गया कुरान के बाद सबसे बड़ा मोजेजा है सफर मेराज। मेराजुल नबी जो है, मेराजुल नबी का मतलब क्या है? नबी की बुलंदी। और ये तो एकदम ये मतलब इजी बात है कि नबी से ज्यादा कोई बुलंद ही नहीं। सही है? इसलिए कि अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहान के लिए रसूल रहमत बनाकर भेजा। और सारे जहान के लिए रसूल रहमत का मतलब ये होता है सारा जहान एक तरफ और रसूल एक तरफ, यानी सारा जहान इसका कलमा पढ़े। और जो कलमा पढ़ता है वो आला नहीं होता है, जिसका कलमा पढ़ता है वो आला होता है। एकदम आसान है। सही है कि नहीं? जब अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं अल्लाह आल बुलंद वाला, और किसका कलमा पढ़ते हैं आप? मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं कि नहीं? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो सारा जहान सारी कायनात सबके वो रसूल हैं। तो सब कलमा पढ़ने वाले हैं और नबी कलमा पढ़े जाने वाले हैं। तो सबसे आला हुए कि नहीं? सबसे आला हुए। हाँ, तो कभी भी मेराजुल नबी, बुलंदी नबी, रिफअत नबी, अजमत नबी या शान नबी की बात आए तो इस पर एतराज नहीं करना, क्योंकि शान के मामले में नबी से बड़ा कोई नहीं है। मखलूक में नबी से बड़ी शान वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए तो अल्लाह ताला 24,000 बार जिब्राइल को मुस्तफा की बारगाह में भेजा। 24,000 बार वही लेकर के आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि अल्लाह इन्फॉर्म कर रहा है कि मैं जिब्राइल को भेज रहा हूं, जरा आप देख लेना, वैसा नहीं है। आप हजरत आयशा के हुजरे में भी हो तो जिब्राइल को वहीं आना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? ये मकाम है। ऐसा भी नहीं कि मैं आया हूं, नहीं, आना पड़ेगा। ये ड्यूटी और जिम्मेदारी दे दी थी अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम। इसीलिए जब इस मेराज में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे तो हुजूर पाक कहां थे बताओ? दारे उम्मे हानी के घर में। तो मशहूर है ना ये रिवायत, दारे उम्मे हानी। सही है? अपनी चची के घर में, दारे उम्मे हानी घर में थे। लेकिन कुरान क्या कहता है? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा होना चाहिए कि दारे उम्मे हानी से मस्जिद अक्सा। किसका फोन बज रहा है? जब मस्जिद के कमेटी वाले जो लिखते हैं ना, प्लीज योर मोबाइल स्विच ऑफ, क्या क्या लिखते हैं ना, अब वो नहीं, प्लीज ऑन मोबाइल, स्विच ऑफ नहीं, अब ऑन मोबाइल लिख देना। वो देख रहा हूं मैं, कमेटी वाले कानून लगा दीजिए, जिसका मोबाइल बजे ना 200 रुपए फाइन लगेगा। समझ में आ जाता सबको। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दारे उम्मे हानी में, ये मशहूर है रिवायत, सब बच्चे बच्चे जानते सब है। लेकिन कुरान में क्या है? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। जानते हैं खूबसूरत नुक्ता? नबी जिस घर में हो अल्लाह ताला उसे मस्जिद हराम की अजमत अता कर देता है। क्या बात है? देख रहे हैं? मस्जिद हराम से ले गए मस्जिद अक्सा तक, जबकि दारे उम्मे हानी से ले गए हैं। सही है? दारे उम्मे हानी से। हज को आप गए होंगे तो आप वहां पिलर देखे होंगे दारे उम्मे हानी का। रुकने यमानी से 100 कदम आप पीछे आएंगे तो वो दारे उम्मे हानी का पिलर आपको नजर आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा करे आप देख लें वो जहां बुराक बांधा था हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने। यहां तक गए मस्जिद अक्सा। दुआ करें कि मस्जिद अक्सा अच्छे से आबाद हो जाए और जो बरकतें अल्लाह ने रखी है वहां के बाशिंदगों को बरकतें मिल जाए, अजमतें मिल जाए। वहां के बच्चों की जो सिसकती हुई बोलियां थी रब ने कबूल किया है। जालिम पसपा हुए, मजलूम को अजमत मिली। खुदा करे हर तरह से अजमत मिल जाए। और जहां कहीं भी मुसलमान मजलूमियत के शिकार हैं, मौला जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाए और हम मजलूमों की मदद करना है। हमने बरकतें रखी हैं। बरकतें क्या है बताएं? क्या बरकतें रखी? बरकतें के अंबिया किराम की वहां आमद हुई है। नबियों का आना बरकतें हैं। और आपके नबी आम नबी नहीं, इमामुल अंबिया है। गए तो सारे अंबिया किराम
सफ बांधे खड़े थे कि नहीं, और आप तशरीफ ले गए और नमाज पढ़ाए कि नहीं? इमाम अफजल होता है मुक्तदी से कि नहीं? ये और बात है कि आजकल के इमाम नमाज पढ़ने के बाद कमेटी वाले के शिकार हो जाते हैं, और नमाज पढ़ते वक्त तक, इमामत करते वक्त तक तो कमेटी वालों को भी बोलना पड़ता, ताबे इमाम के बोलना ही पड़ता। अल्लाह ताला हम सबको इज्जत व वकार का जीना नसीब फरमाए। लेकिन इमाम अफजल होता है मुक्तदी से, सही है। अब यहां पर वो राज भी, इमामत कुबरा का राज भी खुल गया कि सारे नबियों में सबसे अफजल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, क्योंकि वहां इमामत नबी कर रहे हैं। हालांकि इब्राहिम मौजूद है, आदम मौजूद है, सब अंबिया किराम मौजूद हैं, सारे अंबिया किराम वहां तक तशरीफ ले गए, निशानियां जो है दिखाई जमीनी तौर पर। और याद रखिएगा, ये सफर जो है ये ख्याली सफर नहीं है, ख्वाब का सफर नहीं है, क्योंकि ख्वाब के सफर को कुरान इतनी अहमियत क्यों देगा? कुरान ख्वाब को बयान करने के लिए थोड़ा ही है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्सों को बयान किया, मगर आखिर में फरमाया इनके किस्सों में इबरत है। तो नबी के अगर ख्वाब होते तो हजरत यूसुफ से ज्यादा अहमियत तो मिलती ना, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कहा अल्लाह ताला ने। इसका मतलब ये ख्वाब का उन्वान नहीं है, ये जागता का उन्वान है। सही है ना, ये जगता का उन्वान। इसीलिए कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बिनबीही बिरसूलिही नहीं कहा कि हम अपने नबी को ले जा रहे हैं या अपने रसूल को ले जा रहे हैं, अपने बंदे को ले जा रहे हैं। और बंदा उसको कहते हैं जो रूह और जिस्म दोनों के साथ हो। ख्वाब का ताल्लुक ज्यादा से ज्यादा रूह पर है, सही है ना। आज आप ताजमहल घूम रहे थे, परसों लंदन घूम रहे थे, बीवी को बोले हाँ रहने दो असल में जाके बताओ ना सही है कि नहीं। तो ख्वाब का इनकार नहीं होता, लेकिन आप देखेंगे कि अबू जहलियों ने इनकार किया है। ये इनकार बता रहा है कि खुद कुफ्फार को भी यकीन है कि ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। सही है ना, वरना इनकार नहीं होता। अच्छा एक और बात, अबू जहलियों ने इनकार किया, यह भी हकीकत है, और सिद्दीक ने इकरार किया, यह भी हकीकत है। अब आपको हमको फैसला करना है कि इकरार करके सिद्दीक बनेंगे या इनकार करके अबू जहल बनेंगे। हम इनकार करने वाले नहीं हैं, हम सिद्दीक के गुलाम बनेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक पर अमल है। मस्जिद अक्सा तक पहुंच गए, मस्जिद अक्सा के बाद फिर आसमानी सफर है। मस्जिद अक्सा तक ये कुरान पाक से साबित है। मस्जिद अक्सा से ऊपर जाना ये हदीस मशहूरा, और फिर उसके बाद लामकान का सफर ये भी हदीस ही से साबित है। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा कि जब सफर कराने वाला अल्लाह है तो एंडिंग मत कीजिए, ये इंतजार कीजिए कि क्या क्या अल्लाह पाक इस सफर में दिया होगा। भाई आप हमारे साथ सफर करें तो आप भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, सही है, क्योंकि हमारे पास भी नफ्स है, आपके पास भी नफ्स है। लेकिन वहां जो सफर है, क्या बात है। एक तो अल्लाह ताला जिसकी शान है ये हो युतइमु वला युतअम, वो नफ्स से पाक है, वो खिलाता है खाता नहीं है, वो पिलाता है पीता नहीं है, तो सफर वो करा रहा है। और ये नबी है जो पेट पे पत्थर बांध करके पिलाते खिलाते हैं। शान देखे, क्या खाने होने वाला सफर है, खाने होने वाला सैर है? नहीं, वो अताओं का सैर है, वो नवाजिशात का सैर है, वो इनामात का सैर है। इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह पाक के नबी जब ऐलान करते हैं रिसालत का, ठीक है, 40 साल की उम्र पाक के बाद, सब समझ रहे हो ना जुमला, 40 साल के बाद ऐलान करें। अब ऐलान करने के बाद सबसे पहले कौन ईमान लाए? बड़ों में हजरत अबू बकर सिद्दीक, सही है, बच्चों में हजरत अली, ठीक है, औरत में हजरत खदीजतुल कुबरा, गुलाम में हजरत ज़ैद इब्न हारिसा। आप सब जानते हैं। ये बताइए, जब ऐलान करे तो फर्स्ट राउंड में ईमान लाने वाले यही है ना। उसके बाद 1 साल 2 साल आप जितने भी ले लें, उमर इब्न खत्ताब भी ईमान ले आए, ठीक है, उस्मान गनी भी ईमान ले आए, ठीक है, अली तो ले ही आए हैं। कमाल है, खुलफाए राशिदीन ईमान ला चुके हैं, सिद्दीक अकबर ईमान ला चुके हैं। तमाम इंसान में सबसे ज्यादा नबियों के बाद किसी को फजीलत हासिल है तो अबू बकर हैं, वो ईमान ला चुके हैं। लेकिन कमाल यह है कि ईमान तो लाए हैं, मगर पूछिए अबू बकर सिद्दीक से, ईमान लाकर क्या कर रहे हो आप? जरा इस मिराज का नुक्ता आज समझिए, जरा आप लोग अच्छे एकदम दिख रहे हैं माशाल्लाह।
ईमान तो ले आए, तो ईमान लाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना भाई, हम मोमिन है तो हमारी जिम्मेदारी है नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, है नहीं? जिस तरह से हमारी इस्तिताअत है, क्लियर बात है। लेकिन अबू बकर सिद्दीक, तुम तो 40 साल की जब पाक नबी ने ऐलान किया तो उसी राउंड में ईमान लाए हो। तो अबू बकर तुम तो ईमान लाए सडनली, फौरन, लेकिन नमाज तो मेराज में फर्ज हो रही है। तो 40 साल के बाद 41, 42, 43 पूरे 12 साल को आप ऐड कर लीजिए, इसमें 12 साल को ऐड कर लीजिए। ये जो 12 इयर्स रनिंग है, अबू बकर सिद्दीक से जरा कोई पूछे इस रनिंग ऑफ लाइफ में आप क्या कर रहे थे? ईमान तो लाए, समझ में आ रही है बात, कर क्या रहे थे? नमाज तो फर्ज मेराज में हुई है, और ज़कात, हज, रोजा, ये सब तो मदीना में, मेराज के मुकम्मल बाद, हिजरत के बाद। मेराज तो मक्का में और नमाज मेराज में, लेकिन ईमान मेराज से पहले, ईमान मेराज से पहले। और लाने वालों में खुलफाए राशिदीन, और खुलफाए राशिदीन तमाम सहाबा में अफजल, और तमाम सहाबा में सबसे अफजल अबू बकर, और सबसे अफजल अबू बकर ईमान ला चुके हैं। और लाने के बाद कुल 12 साल की जर्नी है, लेकिन कोई बता दे कि वो पढ़ क्या रहे हैं, खुदा के किस हुक्म पर अमल कर रहे हैं। जरा समझिए अपने ईमान को, जरा समझिए अपने अकीदा रिसालत को। अगर पूछोगे सिद्दीक अकबर से कि तुम क्या कर रहे हो, जवाब यही मिलेगा, नबी नबी कर रहा हूं बस। और क्या करो? नबी पर ईमान लाया, नबी हमारी तरबियत कर रहे हैं, तौहीद समझा रहे हैं, तौहीद की रियलिटी समझा रहे हैं। अमल प्रैक्टिकली तौर पर देखें तो कुछ नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अमल यह है कि नबी को समझा जाए। 12 साल तक सिद्दीक अकबर ने नबी को समझने में लगाया। फिर भी सुनिए, एक मौका ऐसा आता है कि नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर, ये ना समझना कि मेरी हकीकत तुम जान चुके हो, मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। कमाल है, सिर्फ समझने और जानने की उम्र पाने वाले सिद्दीक अकबर, फिर भी नबी ने डायरेक्ट उनको कह दिया नहीं जान सके। यही इसी को पस मंजर को कहा, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, नहीं हद है उनके उरूज की। सिद्दीक अकबर को सिर्फ नबी को समझना था, फिर भी ना समझ सके नबी की मार्फत, नबी की हकीकत, नबी की अजमत क्या है। तो सबसे अफजल इंसान अमल से पहले डायरेक्ट ईमान लाकर, सोहबत डायरेक्ट मुकम्मल 12 साल पाकर, जाहिरी तौर पर ईमान अमल से पहले सिर्फ नबी को समझने की जिंदगी के मामले में नबी को की अजमत न समझ सके, आप हम क्या समझ सकते। इसलिए हमें चाहिए कि नबी की अजमत बयान करें, समझने की कोशिश न करें। आप बस आप बयान कीजिए ताकि बयान करने वालों में आपकी शिरकत और शमूलियत हो जाए, यही है मंशा। वरना आप सोचिए, अल्लाह ताला जब ऐलान रिसालत करने का हुक्म दिया तो हुक्म क्यों नहीं दिया कि आप ऐलान कीजिए और ये नमाज है दीजिए उम्मत को, ये हज है बताइए उम्मत को, ये ज़कात है बताइए उम्मत को, दे देना चाहिए। लेकिन नहीं, अल्लाह ताला का भी मकसद समझिए कि अल्लाह ताला भी चाहता है कि तुम नमाज की फर्जियत से पहले नबी को पहचानो, नबी की अजमत को पहचानो, उनके लेवल को पहचानो, उनके स्टेटस को पहचानो, और पहचाना। चुनांचे आप देखें, अफजलुल बशर बाबुल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, यही मेराज का उन्वान है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे तशरीफ लाए, तो लाने के बाद जब बयान किया दूसरे दिन, तो सबसे पहले इनकार करने वाला अगर कोई है तो अबू जहल है। और वो दौड़ता हुआ अबू बकर सिद्दीक के पास आया। गोया अबू जहल को भी इस बात का यकीन कामिल है कि सबसे सच्चा पक्का कोई अगर आशिक रसूल है तो वो अबू बकर सिद्दीक है, और ना और किसी के पास जा सकता था ना। वो इसलिए गया कि अगर अबू बकर को मैंने पलटा दिया तो सब पलट जाएंगे, सब पलट जाएंगे। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काम में मसरूफ थे, पीछे से आकर कहा, अबू बकर, मोहम्मद ऐसा ऐसा कह रहे हैं, रात के थोड़े से हिस्से में 1.5 महीने के सफर को, हैं 1.5 महीने के सफर को इम्पॉसिबल बात कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम का चहीता अबू बकर सिद्दीक पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और कहता है, कौन कह रहे हैं? तुम्हारे मोहम्मद कह रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद कह रहे हैं तो सब तस्दीक करता हूं मैं, सुभान अल्लाह।
اور یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہاں جبرائیل آ کر نبی کو کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کا خطاب مل رہا ہے ان کو، صدیق کا مطلب تصدیق کرنے والے۔ میں کہنے یہ جا رہا ہوں کہ معراج کے حوالے سے نگیٹیوٹی نہ لانا، نگیٹیوٹی نہ لانا، سمجھ میں نہ آئے تو کوشش کیجئے سمجھنے کی، نہیں تو اتنا تو سمجھیے کہ بات جب نبی کی شان کی ہے تو ہمیں سن لینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ سنیں آپ، ذرا سوچئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز دیا، خود نہیں پڑھتا، حج دیا، خود نہیں کرتا ہے، زکات دیا، خود نہیں دیتا ہے، روزہ دیا، خود نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک کام آپ کو دیا ہے اور وہ ہے درود، وہ آپ کو بھی دیا اور خود بھی کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ بھی، فرشتے بھی، فرشتے پڑھے چلو مخلوق ہے، لیکن اللہ بھی کس پر؟ نبی پر درود پڑھتا ہے۔ کمال ہے، تو نبی پر درود پڑھتا ہے۔ سیدنا امام بخاری سے کسی نے پوچھا کہ درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیسا پڑھتا؟ تو امام بخاری اپنے استاد سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ تو ان کے استاد کہتے ہیں شیخ ابو العالیہ کہ سنو، اللہ جو درود پڑھتا ہے نا وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو جمع کرتا اور اپنے کرسی خطابت پر خطاب فرماتا ہے، عنوان نبی کی شان ہوتی ہے، سبحان اللہ، ٹاپک نبی کی ثنا اور تعظیم ہوتی ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے، یعنی اللہم صلی اللہ کا ترجمہ یا درود جو اللہ بھیجتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے؟ تو جب شان کی بات آئے تو ایک دم سننا اور پوزیٹو رہنا، نیگیٹو نہیں رہنا۔ کہاں ہے یہ سب باتیں نہیں ہونی۔ جیسے ابھی دیکھیے، آپ اگر آپ کہیں، میں آپ ہی سے پوچھوں کہ آپ نے سنا ہے دار ام ہانی سے نبی گئے، کہاں ہے؟ قرآن میں تو ہم مسجد حرام سے گئے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے ہم حدیث تک نہیں جا سکتے۔ قرآن میں اگر خاموش پہلو ہو تو حدیث میں جائیں گے، اور قرآن میں اگر ڈیٹیل ہو، کلیئر ہو تو ہم حدیث میں کیوں جائیں؟ قرآن میں اگر کلیئر ہے تو حدیث میں کیوں جائیں؟ قرآن صاف کہہ رہا مسجد حرام سے مسجد اقصی، لیکن آپ دار ام ہانی والی روایت کو بھی غلط نہیں کہہ رہے۔ دار ام ہانی بھی مسجد حرام ہی میں تھا، سبحان اللہ، مسجد حرام ہی میں تھا۔ عظمت دیا دار ام ہانی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہوئے کہ مسجد حرام سے لے لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہنا یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے جتنے بھی آپ واٹس ایپ پر ابھی جو آ رہے تھے، بہت سارے فون آئے، بہت سارے یہ آئے، میسج آئے، بدعت کہتے ہیں، یہ حرام کہتے ہیں، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ ایسا مت کہا کرو۔ بدعت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ غلط کام کر رہے ہیں، یہی نا مطلب ہوا؟ یعنی ہم یہاں جو بیان کر رہے ہیں یہ بھی غلط، آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی غلط، یہ مطلب ہوا؟ اس کا مطلب قرآن جو ہم بول رہے ہیں وہ بھی غلط، حدیث بول رہے ہیں وہ بھی غلط، اور جا کر آپ صوفہ پہ بیٹھ کر موبائل دیکھیں نا، سیریل، یہ صحیح ہے۔ یہ 1 گھنٹہ جو اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے یہ غلط، اور موبائل دیکھنا سنت، معراج النبی بدعت، کیا لاجک ہے یار؟ یہ واٹ نون سینس بات ہے، ایک دم بالکل غلط بات ہے۔ ایسے بات کیا کرو، کہیں ایسی باتیں آئے نا بھائی رہنے دو۔ کلمہ کیا ہے آپ کا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بات داماد کی نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں، بات بہو لانے کی نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں، بات ایمان کی ہے۔ اس میں کل ایک تحقیق کرنے گئے تو عمل ہوتا ہی نہیں آپ کا۔ ایمان یقین کا نام ہے، ایمان یقین کا نام ہے۔ آپ مومن ہیں، بولے الحمدللہ میں مومن ہوں، اور یقین کریں کہ الحمدللہ ایمان پر رہوں گا، اور اللہ کے کرم سے ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور ایمان کی وجہ سے ہی جنت ملے گی۔ کیونکہ اگر آپ نے شک کیا تو پھر ایمان یقین کا نام تھا، شک کرے تو ایمان کہاں رہا؟ شک اور یقین تو اپوزٹ چیز ہے نا، اور کیا ہے کہ با اگر بولے تو یہ شک ہے، اور ایک دم یقین ہے میں ہوں مومن، یہ یقین ہے نا۔ اور ایمان کس کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسا کہا آج آپ لا الہ الا اللہ پڑھنا، 1 سال کے بعد محمد رسول اللہ پڑھنا، آپ مومن ہیں؟ کون تو بولتا ایسا کہ میں نہیں پڑھتا، میں معراج النبی نہیں مناتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، مطلب کلمہ کا آدھا حصہ کا انکار کر رہے ہیں آپ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
इसीलिए तो आप जरा सुनिए, एक बच्ची ने मैंने फोन किया था अभी, तो उसको मैंने जवाब दिया, मनाना कि नहीं मनाना। मैंने कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात पढ़ते आप? हाँ पढ़ते। पढ़ते तो मनाओ पढ़ते तो आप मनाओ। क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह के नबी मेराज में गए थे ना, तो अल्लाह ताला पूछा था, मेरे हबीब मेरे लिए क्या लाए हो? तो अल्लाह के नबी ने ये कहा था, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। अत्तहियात बोलते हैं मुंह से बोली से इबादत, कौली इबादत। वस्सलावात बोले तो बदनी इबादत, और तय्यिबात बोले तो माली इबादत। यानी कौली, बदनी, माली इबादत लाया हूं मौला तेरे लिए। सुभान अल्लाह। तीन चीज अल्लाह के नबी ने दिया, तीन चीज दिया। अब उधर से ट्रांसफर हो रहा, देखो तीन चीज का बदला। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयाब का जवाब सलाम से, क्योंकि सलाम का ताल्लुक जबान से है। हबीब ने जबान से कहा तो रब ने भी जबान से जवाब दिया। सुभान अल्लाह। और देखिएगा, अगर आप पर रहम ना हो तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो सलवात बदनी इबादत को, तो बदन पर देखिए, वरहमतुल्लाहि, अल्लाह की रहमत हो आपके बदन पर है। और माल में बरकत ना हो तो आप ज़कात भी नहीं दे सकते। तो बरकत के लिए जो अल्लाह पाक के नबी ने माली इबादत पेश किया तो फरमाया वबरकातुहू। तीन इधर से, तीन उधर से। अच्छा, और उसके बाद जब सलाम किया तो इस सलाम में जरा सुनिए क्या जुमला था, अस्सलामु अलैका। क्या बोले तो ओनली आप पर सलाम हो, ओनली आप पर सलाम हो। जो उम्मती मेराजुल नबी का इनकार करते हैं ना, वो अपने उम्मती होने पर गौर कर ले। कसम खुदा की, जबकि अल्लाह ने डायरेक्ट कहा कि आप पर सलाम हो, तब एतराज की कोई गुंजाइश थी, खुश होना चाहिए। लेकिन कहा नहीं, हे मेरे अल्लाह, आज के दिन मैं अपने गुनहगार उम्मत को कैसा भूल सकता हूं। ओनली यू का जुमला था, योर का जुमला नहीं था, आप सब पर हो नहीं। आप समझ रहे हैं ना जुमला? तो अल्लाह के नबी को क्या कहना, अस्सलामु अलैया, ये होना चाहिए सलाम हो मुझ पर। लेकिन फरमाया नबी ने उसके बाद अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना। और यही नहीं, वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। अल्लाह ने सिर्फ नबी को कहा था सलाम, रहमत, बरकत, लेकिन नबी ने कहा मुझ पर नहीं, हम पर हो। ये हम पर कौन है? ये मुझ नबी है, और मुझ में जो गुनहगार उम्मत है ना, उन सबको शरीक किया है। और जो नेकोकार है उसको अलग कर दिया कि वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। नेकोकार को भी शरीक कर रहा हो और गुनहगार को भी शरीक कर रहा हो। मुझ पर भी सलामती हो, गुनहगारों पर भी सलामती हो, नेकोकार उम्मती पर भी सलामती हो। तो बताइए, आज की रात आपको सलाम में, रहमत में, बरकत में नबी नहीं भूले, और आज कह रहे हैं कि बिदात है। क्या लॉजिक है? कहां से रहमत होती है आपके घर पे? कहां से बरकत होती है आपके घर पे? कहां से आपके ऊपर सलामती होती? वो नबी, ओनली नबी के ऊपर रहमत, बरकत अल्लाह ने कहा था, लेकिन नबी ने कहा नहीं, आज के दिन उम्मती को नहीं छोड़ सकता। उम्मती, तुम भी मेराजुल नबी को नहीं छोड़ना। सुभान अल्लाह। ठीक है? हाँ। अच्छा, ये मंजर को देखकर जो सुना हजरत जिब्रील खुश हो गए और सारे फरिश्तों के साथ एक जुमला कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये कौन कह रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब नमाज में पढ़ते कि नहीं? और ये मेराज में हुआ सो है। ये बात हुई है अल्लाह रसूल के दरमियान, अब वो आपको मिला। नमाज भी वही मसला है। जब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए, तो जानते पहले आसमान पर गए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर गए तो हजरत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर गए तो हजरत इदरीस या हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये सब गए ना, तो सब गए, वेलकम हुआ, सारी चीजें हुई। पहले आसमान पर गए तो कुछ फरिश्ते को देखा खड़ा। अल्लाह के नबी ने पूछा ये खड़े कौन है? कहा कि ये खड़े हैं क़याम की हालत में, अल्लाह का हुक्म है, इसी हालत में वो नमाज पढ़ना है, इबादत करना अल्लाह। जब उसके ऊपर गए तो किसी को देखा रुकू की हालत में, पूछा कि ये इस हालत में क्यों है? तो कहा सिर्फ रुकू की हालत की नमाज।
उसके बाद गए तो सजदे की हालत में देखते चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि ये सारी हयात, ये सारी शक्ल मिलाकर अगर मेरी उम्मत को मिल जाए, सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, ये एहतराम मुस्तफा और ख्वाहिश मुस्तफा का नाम नमाज है, जो आप फख्र करते हो जिस नमाज पर। चुनांचे जब अल्लाह तबारक तआला के पास गए तब तोहफे मेराज मिला, अहमियत नमाज भी समझ में आ गई आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर इबादत की मकबूलियत का तसव्वुर नहीं रख सकते आप। इसीलिए नबी ने कहा अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, मेरी मेराज रब तक, तेरी मेराज नमाज तक। सुभान अल्लाह। मैं भी खुदा का कुर्बे खास हासिल किया हूं मेराज में। ध्यान दीजिएगा, ए मेरे गुलामों, तुम जब सजदे में जाओगे तो सबसे ज्यादा कुर्बे मौला हासिल होगा तुम्हें नमाज। और आप गौर कीजिए, इस हदीस पाक पर भी गौर कीजिए, जिस हदीस पाक में कहा गया है कि मेरी आंखों की ठंडक किसमें है? बोलिए, कौन बोले? नबी बोले। इसका क्या मतलब हुआ? नमाज तुम पढ़ते खुशी नबी को मिलती। हम नबी को छोड़ करके नमाज का या इबादत का तसव्वुर कर ही नहीं सकते आप। कहीं भी आप सुने होंगे कि अल्लाह की आंख को ठंडक पहुंचती? नबी कह रहे हैं नमाज तुम पढ़ोगे खुशी मुझे मिलेगी। क्यों? इसलिए कि ये जो हयात है ना, मेरी ख्वाहिश की बुनियाद पर तुम्हें दी गई है, सुभान अल्लाह, इसलिए मुझे खुशी होगी। मुसलमानों, नमाज के वक्त आप नमाज पढ़ते हो, पढ़ो, इबादतें करते हो, आप करो, लेकिन याद रखना कि अगर नमाज को अफजल इबादत समझते हो तो ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इसीलिए आप पर तो 50 वक्त की नमाज फर्ज की गई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से, आप समझिए, उनकी ख्वाहिश के एहतराम और तकमील में भी 45 वक्त की नमाज को बदल दिया, मगर सवाब वही रखा। आप समझ रहे हैं इन बातों को? और एक और बात, ज़कात दिया जिब्रील के वास्ते से, हज दिया जिब्रील के वास्ते से, जितने भी पिलर्स ऑफ इस्लाम है सब जिब्रील के वास्ते से दिया, लेकिन नमाज दिया मुस्तफा के हाथ से। सुभान अल्लाह। आप समझिए, तो जिस कदर आप नमाज का एहतमाम कर रहे हैं उसी कदर आप नबी की शान अपने दिल में बिठाइए। अब क्यों? इसलिए कि उन हैंड टू हैंड आपको मिला है। चाहता तो वो जिब्राइल के वास्ते से भी दे सकता, वो इसलिए भी कि ज़कात तो एक खास पर फर्ज है जो मालिक निसाब होंगे, हज भी खास पर जो मालिक इस्तिताअत होंगे, सही है ना? रोजा भी खास 1 महीने का है जो पॉसिबिलिटी जिनके पास हो, ताकत रखते हो, सही है कि नहीं? जो मुसाफिर हो, जो बीमार हो, उनका तो मसला ही अलग। तो जितने भी पिलर्स ऑफ इस्लाम ने 4 को देखें तो एक खास के लिए, लेकिन नमाज कॉमन है, वो गरीब अमीर छोटे बड़े हर बालिग मर्द औरत सब पर फर्ज है। सुभान अल्लाह। इसलिए ये अहमियत है, लेकिन जहां इसकी अहमियत और अफजलियत है उससे कहीं ज्यादा आप अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत अपने दिल में रखें, तब जाकर आपको नमाज कबूल होगी। वरना आप सुनिए, अबू बकर सिद्दीक अकबर बन चुके हैं, नमाज नहीं है। नमाज 12 साल के बाद है। उमर इब्न खत्ताब आदलुल असहाब बन चुके हैं, नमाज नहीं है। खुलफाए राशिदीन, नमाज नहीं है। समझिए आप, लेकिन अजमत है। क्यों? इसलिए कि नबी को अपने दिल में बिठाए हुए, नबी की शान अपने दिल में बिठाए हुए। इसलिए मेराज, उरूज, बुलंदी, इन सब का जो तसव्वुर है ये नबी की शान और अजमत से है। खुदा से कौन ऊपर करता जी? नबी को ऊपर करता वही जो खुदा की लिमिट जानता, और जब खुदा की लिमिट ही नहीं जानते तो ऊपर कौन करते? अब जैसे ईसाई लोग अल्लाह का बेटा बोल दिए, खत्म ही हो गया वो। अब बेटा है तो फिर अल्लाह का भी बाप होगा ना, तो ईसा का दादा कौन है? सही है, खत्म ही कर दिए। क्योंकि हर बाप, बेटा, पोता, दादा, ये सब को फना लाजिम है, और अल्लाह की शान है वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह मिटने वाला नहीं है, सारी कायनात फना होगी, अल्लाह बाकी है। लिहाजा ईसाई गए, नबी को मानने वाले, नोट कीजिएगा, नबी को मानने वाले अल्लाह से ऐड कर दिए तो गलत अकीदा रख लिए। लेकिन अगर नबी की शान, जैसे ईसा रूहुल्लाह है, ईसा अल्लाह के बंदे हैं, ईसा अल्लाह के रसूल है, ईसा की शान उनकी शान होती तो काहे को जाते हैं? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अल्लाह का बेटा मानते हैं? बोले नहीं, अल्लाह का रसूल मानते हैं।
मखलूक में सबसे अफजल मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। सारे अंबिया किराम के वो इमाम हैं, बिल्कुल मानते हैं। औलाद आदम के वो सरदार हैं, बिल्कुल मानते हैं। और आप सोचिए, यहां आखिरी बात कह रहा हूं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, इसको याद रखिएगा। ये बताइए, यहां तो आप इन महफिलों को बिदअत का फतवा लगा देंगे, बड़ी अहम बात है, सुनकर इसको जाना। अल्लाह ताला सब जानता है कि नहीं? आप कितने पानी में है जानता है कि नहीं? कितने वक्त की नमाज पढ़ते जानता है कि नहीं? आप जन्नती हैं या जहन्नमी जानता है कि नहीं? वो आलिमुल गैब व शहादा है, सब जानता है। तो सवाल ये है कि सब जानता है तो सबके हाथ में परवाना दे देना, मैदान महशर में इतना लंबा मैदान महशर, हिसाब और किताब, ये सब कायम करने की जरूरत कहीं को है? जब जान रहा है तो बोल दे तू जन्नती है जा, तू जहन्नमी है जा, सब जान रहा है ना भाई। आप जिसको जिसको जान रहे हैं तो आप पूरी तहकीक करेंगे एलकेजी से। अल्लाह सब जान रहा है, हमारे अमाल को, हमारे अंजाम को, हम कहां जाने वाले हैं, सब जान रहा है अल्लाह ताला। मैदान महशर क्यों कायम कर रहा है? लगाइए फतवा। यहां इंडिया में तो लगा दिया, हैदराबाद में तो लगा दिए, 200-500 जने जमा थे, ये जमा होना बिदअत है। वहां 18,000 मखलूकात जमा है, 18,000। और प्रोटोकॉल सुनिए, अल्लाह पाक के जितने भी बंदे हैं सब हैबत में हैं, सब हैबत में हैं। चुनांचे इसी हैबत और खौफ के आलम में बस अल्लाह ने गोया अक्ल दिया कि जाओ आदम के पास। आप सब चले गए और जाकर के आदम की तारीफ कर रहे हैं। मांगने का सलीका सुन, आदम तुम तो मस्जूद मलाइका हो, तुम तो इतनी शान वाले हो कि अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम्हें फरिश्ते सजदा करें, इतने पावरफुल हो। इश्फा लना इला रब्बिक अला तरा मा नहनु फीह, बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। हम कितनी तकलीफ में हैं, आप देख रहे हो ना। खुदा से रिक्वेस्ट कर दो ना, हमें माफ कर दे, हमारी शफाअत करो अल्लाह की बारगाह में, हमें माफ कर दे। तो हजरत आदम क्या कहेंगे उस वक्त? ये नहीं कहेंगे मैं मजबूर हूं, लाचार हूं, नहीं, ये काम आज मेरा नहीं है, ये काम मेरे अलावा का है। आज सिलेबस से काम होने वाला है, आज डायरेक्ट काम होने वाला नहीं है। इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा के पास चले जाओ। तुम जाओ नूह के पास, ध्यान दीजिए, नूह के पास आप चले गए, नूह के पास। नूह, अरे आप तो नजीउल्लाह है, अल्लाह ने आपको नजात दिया, तूफान से, इससे उससे डूबने से बचाया वगैरह वगैरह, आप तारीफ कर रहे। हजरत नूह भी बोले इज़हबू इला गैरी, आज मेरा काम ये नहीं है। नबी वहां मजबूर नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, वहां मजबूर नहीं है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी हद। मेरा काम ये नहीं है, आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, जाओ मेरे अलावा के पास। चुनांचे आप आते 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 गए यहां तक कि हजरत ईसा के पास आ, उनकी भी आप तारीफ कर रहे हैं, अरे आप शान वाले हैं, ये है। ईसा अलैहिस्सलाम भी ये कह रहे हैं इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा के पास। लेकिन एक जबरदस्त एड्रेस बता रहे हैं, इज़हबू इला मोहम्मद, ये काम तो मोहम्मद का है। अब आप जरा यहां पर सोचिए, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब आप गए और वहां नहीं बोल रहे हैं आप जाकर के जितना सबके पास बोल रहे थे। क्यों? नबी बोलने ही नहीं दे रहे हैं आपको। कह रहे हैं अरे कहां थे मेरी उम्मतियों, आई ना, तुम कहां थे? अना लहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है, आप 1 घंटा 2 घंटा आप नबी के लिए यहां निकाले तो हजारों बिदात और शिर्क के जुमले सुन करके आप आए हैं। वहां 1,24,000 अंबिया किराम से होते हुए आ रहे हैं और नबी आपके काम आ रहे हैं और कह रहे हैं कहां हो, आज तो ये काम मेरा ही है। क्या बात, मेरा ही है। आप हम सब डर रहे थे। अब जरा सोचिए, उसके बाद जरा सोचिए, मैदान महशर है, जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसका अमल का सिलसिला खत्म हो जाता वहां अमल, कब्र में आप अमल यही है जो कर लेना, वहां जजा मिलती, बदला मिलता, सही है। लेकिन अल्लाह पाक भी अपने हबीब के लिए एक अजब और एक अजीम शान रखा है। और वो देखिए, अल्लाह पाक के नबी सजदे में फिर गिरेंगे। अब ये सजदा अमल है कि नहीं? सजदा अमल है ना। वो डायरेक्ट भी अल्लाह को कह सकते थे नबी, हे अल्लाह बख्श देने, लेकिन इस सजदे में गिर गए। मालूम हुआ कि वो जो दारुल जजा है
वो हमारे लिए है, हबीब के लिए दारुल अमल है। सुभान अल्लाह। अब वो सजदे में जो गिरे हैं वो अपने लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए। आप हम सब डर रहे और खौफ के आलम में है कि अल्लाह ताला हिसाब लेने वाला है, लेकिन अल्लाह पाक के नबी जब सजदे में तशरीफ ले जाते हैं तो अल्लाह पाक कहता है मेरा हबीब कहां है। जब देखता है मेरे हबीब तुम सर सजदे में, तो अल्लाह पाक फरमाता इरफा रासक या मोहब्बत, ए मेरे हबीब इसी सर की बुलंदी के लिए तो ये महफिल मैंने सजाई है, इसलिए ये सर को उठाइए, सर को उठाइए, वरना मैं तो जानता हूं कौन कितने पानी में है कि नहीं, मैं तो जानता हूं कौन कितने पानी में। इस सर को उठाइए और आज मांगना है जो मांगिए, आपकी हर मांग मैं पूरी करूंगा। क्या बात है। और जिनकी शफाअत करनी है कीजिए, आपका रिक्वेस्ट कबूल किया जाएगा। सोचिए अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का क्या आलम होगा। इसी को सूरह बनी इस्राइल की आयत नंबर 60 या 629 में पर आयत पढ़ दे रहा हूं, फरमाता है असा जब आसा का रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है कि अल्लाह पाक आपको मकाम महमूद पर फाइज करेगा। ये मकाम महमूद क्या है? आदम अपनी उम्मत के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी अपनी उम्मत के साथ आएंगे और हुजूर को एक झंडा दिया जाएगा जिस झंडे का नाम लिवाउल हम्द होगा, और उस झंडे के तहत आदम और ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के साथ झंडे के नीचे होंगे और अल्लाह का हुक्म होगा कि आज मेरी नहीं मेरे महबूब की तारीफ करो। यहमदुकल अव्वलून वल आखिरून, यहमदुकल अव्वलून वल आखिरून, मेरे हबीब आज अव्वल यानी जो पिछले थे अंबिया अपनी उम्मतियों के साथ, और आखिर वो सब आज आपकी तारीफ करेंगे। आपने तो मेरी तारीफ इतनी की है कि आपसे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए आज मैं आपकी तारीफ सबसे सुनना चाहता हूं। देखा आपने, खुलासा ये है कि मेराजुल नबी की जो रात है बड़ी अजमत वाली रात है, कद्र की रात। कुरान का नाजिल होना मालूम है, मगर कुरान कब मिलता आपको? जब नबी मिलते ना। बताइए अबू बकर सिद्दीक को कुरान मिला था? नबी मिले तब कुरान मिला, नबी मिले तब उमर को कुरान मिला। सब कुछ जो कुछ चाहे नमाज हज ज़कात रोजा जो कुछ भी हो, यहां तक कि खुद खुदा उस वक्त मिलेगा आपको जब नबी मिलेंगे। जब तक अबू बकर को नबी नहीं मिले थे वो मोमिन नहीं कहलाए, नबी मिल गए तो मोमिन कहलाए। आप समझिए इस बात को। इसलिए नबी के हवाले से नेगेटिव मत बनिए। और आज जो खुसूसियत के साथ मेराज का पैगाम देने जा रहा हूं, मस्जिद को आबाद कीजिए। अगर आप बुलडोज से बचाना है मस्जिद को तो मस्जिद को आबाद कीजिए, मस्जिद को बंद करके सुनसान मत रखिए। आप कभी न कभी आइए मस्जिद में बैठिए, आबाद रहेंगी तो इंशाअल्लाह हर शैतान मस्जिद से भागेगा, हर शैतान। आपको हदीस के अल्फाज मालूम है कि सफ में कुशादगी ना छोड़ना वरना शैतान आ जाता। इसका मतलब यह हुआ कि मस्जिद को आबाद रखना है, जर्रा भी नहीं छोड़ना है, वरना ना दिखे जाने वाला शैतान वो भी आ सकता है और दिखे जाने वाला शैतान भी आ सकता है। इसलिए आज के सिचुएशन के हिसाब से, हालात और तकाजे के हिसाब से ये पैगाम बहुत ही खूबसूरत है कि मस्जिद को आबाद कीजिए। सिर्फ रात में 100, 200, 500 नहीं, हर दिन नमाज है आप पर 5 वक्त की फर्ज, और ये नबी का सबसे अजीम तोहफा है, हैंड टू हैंड मिला है। नबी को खुश करेंगे खुदा खुश हो जाएगा। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, आप वक्त निकाल कर आप मस्जिद में आइए। मोबाइल देखना बिला वजह बंद कीजिए, ये मुस्तफा की एक्टिविटी नहीं है। मुस्तफा की एक्टिविटी नमाज है, दरूद है, हज है, ज़कात है, सलाम है, नमाज है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए इसमें आप रहोगे तो आप समझिए बेहतरीन उम्मत हो। वरना आपको सुनिए कम उम्र मिली है, पिछली उम्मत को बहुत ज्यादा उम्रें मिली। उन उम्मतियों ने अपनी सारी उम्रें भी इबादतों में गुजार दी, फिर भी आपके बराबर ना हो सकी। और आपको इतनी उम्र मिलने के बाद भी आप नेक नहीं कर रहे हो, तो बताओ वो उम्मती कह पड़ेगी खुदा से, ए अल्लाह जब बेहतरीन उम्मत बनाया था तो बेहतरीन अमल क्यों नहीं है इनके पास, बेहतरीन अमल क्यों नहीं है इनके पास। इसलिए छोड़िए कहां क्या हो रहा है। आप जब यहां पैदा हुए हैं तो क्या यहां उलमा नहीं है? दुनियावी तालीम के लिए कॉलेज स्कूल को आप चॉइस करते हैं,
دین کے تحفظ کے لیے آپ یہاں کیوں نہیں کانٹیکٹ کرتے, رجوع کرتے؟ اس لیے مسلمانوں صحیح عالم سے کنیکٹ رہیے, بزرگوں سے کنیکٹ رہیے, ماں باپ کا ادب کیجئے, بڑوں کا احترام کیجئے, کٹوں پر مت بیٹھیے, بچوں کے سامنے موبائل مت دیکھیے, بیوی سے بچوں کے سامنے جھگڑے مت کیجئے, بہن سے پیار سے پیش آئیے, شادی کیوں نہ ہو گئی ہو تب بھی پیار کیجئے ان سے. ایسا مت کہیے ان کو کہ تمہارا تو جہیز دے دیے اب یہاں پر کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں, کہتے ہیں کہ قیامت آ گئی. کسی نے آ کر کے کہا ان سے, ارے قیامت آ گئی, قیامت آ گئی, قیامت آ گئی. تو آپ نے اپنے ذان پر زور سے ہاتھ مار کر کہا اللہ کی قسم قیامت آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ لوگ وراثت بانٹنا بند کر دیں گے تب قیامت آ جائے. آج ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بہن بولتی ہے آپ کو کہ 5 لاکھ کی آپ ولیمہ کرو, شادی کرو, اتنے خرچ کرو, نہیں بولتی. تو پھر شادی کے بعد جب وہ اپنی وراثت اپنا حق مانگتی ہے تو تم کیوں گنا دیتے ہو کہ تمہاری شادی میں اتنا خرچہ ہوا؟ تمہاری کس نے کہا تھا؟ نہ خدا نے کہا تھا نہ رسول نے کہا تھا. تم اپنی ناک سیدھی کرنے, اپنی شان, اپنے اسٹیٹس دنیا کے سامنے بڑا اچھا میٹھا کھلایا, بڑا اچھا بریانی کھلایا, نام و نمود کے لیے ایسا کرتے ہو. نہیں مسلمانوں, نہ یہ خدا کی رضا ہے نہ مصطفیٰ کی رضا ہے. آپ ایک شادی میں اتنا خرچ کر دیتے ہو. مصطفیٰ نے تو 11 شادیاں, 9 شادیاں بیک وقت, 9 بیویاں بیک وقت, اور شادی بھی ایسی کہ آپ کی بیوی تو پتہ نہیں زیادہ سے زیادہ پروفیسر کی بیٹی ہو سکتی. خدیجۃ الکبریٰ تو عرب کی سب سے بڑی انویسٹر تھی, سب سے بڑی مالدار تھی. وہ چاہتی تو بہت کچھ کر سکتی تھی لیکن کچھ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیا اس لیے کہ ناجائز کام؟ نہیں, نکاح کو آسان بناؤ. آج الٹا ہو گیا ہے, برائیاں اتنی آسان ہو گئی ہے, نکاح اتنا ہی مشکل ہو چکا ہے. کیونکہ نبی نے کہا تھا نکاح آسان کرو گے تو برائیاں ختم ہوگی, لیکن تم نے برائیوں کو آسان کر دیا ہے. نکاح بالکل مشکل ہو چکا ہے. اس لیے یہ پیغام ضرور سننا. 5 وقت کی نماز پڑھو, 45 وقت نبی نے کم کرایا. کیا جواب دو گے آپ؟ 5 وقت بھی نہیں آپ پڑھیں گے, پرسنٹیج کے حساب سے دیکھتے تو 45 پورا کم ہو گیا نا, اور 5 بھی کم کرا دیتے تب بھی کم ہے. وہ بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر تو موسیٰ بھی آپ کا دامن تھام لیں گے, موسیٰ بھی آپ کا پکڑ لیں گے اور کہیں گے کیا کیا تم نے؟ 5 وقت بھی نماز نہیں ہو پا رہی ہے. اس لیے آپ نماز کے وقت نماز, اور صاحب استطاعت ہو تو زکات, مالک نصاب ہو تو زکات, صاحب استطاعت ہو تو حج, آپ اس کو موقوف نہ کرو. زکات بھی ادا کرو مسلمانوں, اس سے پہلے کہ زکات لینے والے دینے والے بن جائیں, لینے والے ختم ہو جائیں. اور نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز مسجد میں پڑھی جائے, اور حج کر لو اس سے پہلے کہ کعبہ کو اٹھا لیا جائے. کسی کے کہنے یا کسی کی وجہ سے شادی کرا دیں گے تو کریں گے. ہے آپ کو اپنی زندگی کا یقین؟ ہر روز میں آپ پڑھ کے سوتے ہو اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ میں تیرے نام پر مر رہا ہوں اور تیرے نام پر زندہ ہوں گا. مر رہا ہوں روز پڑھ کر سوتے ہو نا, روز پڑھ کر یہ دعا سوتے ہو. ہو سکتا ہے آج تم سو, کل قبر میں تمہاری آنکھ کھلے. تم کیسے یہ گارنٹی لے رہے ہو کہ بیٹی کی شادی کرائیں گے تب حج کریں گے؟ ایسا کیوں نہیں کہہ رہے ہو؟ حج کرائیں گے, دعا کریں گے تاکہ جوڑا اچھا مل جائے. سبحان اللہ, ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, وہ خالق اور مالک اور رازق ہے. اس لیے ایمان کو گھٹ کرو, نبی سے جڑو, قرآن سے جڑو. موبائل میں نہیں, رحل پر رکھ کر قرآن پڑھو. اپنے آنکھوں سے لگاؤ, سر پر رکھو, سینے سے لگاؤ, انگلیاں رکھو. انشاءاللہ یہ آنکھ پھر بری چیز نہیں دیکھے گی, یہ ہاتھ پھر برا کام نہیں کرے گا. قرآن کو چھوؤ, آستانوں سے جڑو, بزرگوں سے جڑو, ٹائم نکالو, قسم خدا کی مراقبہ کرو, مواجہہ کرو, تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اللہ اللہ کرو. تب جا کر کے آپ کا دل صاف ہوگا, اور دل صاف ہوگا تو جانتے ہو قلب المؤمن عرش اللہ, مومن کا دل اللہ کا تخت ہے. تخت سمجھتے؟ تخت بولے تو بیٹھنے کی جگہ, اور مومن ہے کہ نہیں آپ؟ ایسے ہی آپ اپنے دل میں بٹھائیں گے, آپ کا دل صاف ہوگا تب نہ اللہ بیٹھے گا. کچرے والے دل میں بیٹھے گا,
अल्लाह है जो पाक है, कितना साफ रखना चाहिए। एक छोटी सी बात है, आपका कोई दामाद आ रहा हो घर, आप ऐसे आप बगैर बिस्तर के दे देंगे कुर्सी, बगैर बिस्तर के आप दे देंगे बैठने की जगह? कुछ तो आप रिस्पेक्ट देंगे ना, कुछ तो अच्छे से आप जो भी एहतमाम है करेंगे ना। सोचिए, तख्त जो है बैठने की जगह होती, और बैठने वाला जैसा लेवल का हो उसी तरह से उसको सजाया जाता है। मोमिन का दिल अल्लाह का तख्त है, इसको कितना साफ रखना चाहिए। और ये साफ कब होगा कि नमाज के वक्त में नमाज पढ़ो, दरूद के वक्त में दरूद पढ़ो, माँ बाप का ख्याल रखो, उनको उफ तक ना कहो। मुसलमानों, तुम नहीं जानते, वो रोते हैं ना, तुम्हारी सारी इबादत बर्बाद हो जाए। वो खाना खिला देते अलग बात है, तुम जो बोल देते ना, मैं बोल दिया था ना कहीं को जगह तुम है, मैं देर होती बोल दिया था ना, ये भी बेअदबी है। तुम तो इतना बोल दिए ना, लफ्ज़े उफ नहीं बोलने का हुक्म है कुरान में, और इसी सूरह मेराज ही में है, बनी इसराइल नहीं में है। सूरह बनी इसराइल के आयत नंबर 23 और 24 में है कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। मेरी इबादत के बाद अगर मौका मिले तो माँ बाप की खिदमत करो, ये अल्लाह पाक का फैसला है। माँ बाप की खिदमत करो, आप करते हो? माँ बाप बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि आओ खाओ खाओ, रुको मामा, अभी विराट कोहली जो है जरा खेल रहा है। तौबा तौबा, हंसो मत। मौत के बाद तुम्हें मुनकर नकीर को फेस करना है। मौत के बाद तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत को देखना है कब्र में। मौत के बाद तुम्हें कब्र में अकेले रहना है, कोई नहीं आने वाला है। अगर आने वाले हैं तो आमना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे। सोच लो तुमने कितना इंतजाम किया। आप समझ रहे हैं इस बात को? बहरहाल ये मेराज का पैगाम था कि आप हम सब मस्जिद को हर तरह से आबाद कीजिए। इस तरह के जब महफिल के मौके मिले तो आप आइए, ज्यादा से ज्यादा आइए। गैरों तक जब आवाज जाएगी तो आपकी मस्जिद की आबादी का ऐलान उनके कान में जाएगा। नको, वो मस्जिद बड़ी आबाद रहती, उस मस्जिद में हमेशा कुछ न कुछ एक्टिविटी होती रहती, इसलिए इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन अगर आपने सुनसान छोड़ दिया तो गैरों की नजर पड़ जाएगी। आप समझ रहे हैं इन बात को? मैं इशारा कर रहा हूं मुल्क के हालात कैसे हैं, किस तरफ है। ये शिकवा नहीं है, ये हमारी बदअमली का नतीजा है। खुदा के रसूल ने कह दिया था, तुम खुदा रसूल की इताअत नहीं करोगे तो जालिम हुक्मरान तुम पर मुसल्लत कर दूंगा। इताअत करोगे तो अदल वाला हुक्मरान आएगा, इंसाफ वाला हुक्मरान आएगा। इसलिए मुसलमानों, अगर चाहते हो कि इनकलाब आए तो अल्लाह रसूल की इताअत करो, नमाज के वक्त में नमाज पढ़ो, जो भी उसके बाद मौके मुयस्सर आए, हुकूकुल्लाह हो वो अदा करो, हुकूकुल इबाद हो वो अदा करो। हर एक का हक जानो, छोटों पर रहम शफकत से पेश आओ, बड़ों का एहतराम करो। कल 20 साल 30 साल पहले हम लोगों को जब बाप थप्पड़ लगाते थे तो मजे से मार खाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिकायत नहीं करते थे, बल्कि मम्मी भी और मारती थी। गलती करे तब ना पिटाई लगी, गलती हाँ सही बोले। और आज तो अगर अब्बा ने जरा सी बात कह दी तो हो मोबाइल ही से टिकट कटा लेते हैं। कहां? मैं जा रहा हूं, भाग रहा हूं। कहां भाग रहे हैं आप? मुनकर नकीर अगर आ गए तो उनको भी बोल देते जरा 10 दिन के बाद आना कहते हैं। कहां भाग रहे हैं आप? इसलिए बड़ों का अदब खत्म हो चुका है तुम्हारे अंदर। आज बड़े लोग बड़े अफसोस कर रहे हैं कि जब ये गुजरते हैं ना तो नौजवान लोग सिगरेट पीते हैं, गुल्ली डंडे खेलते हैं, और अगर कुछ बोल दो ना, अरे परसों में ऐसे ही जा रहा था गाड़ी से, अब गेंद आ गई, वो आने के बाद आके कह रहा सॉरी। मैं कहा जरा देख के खेलो, तो क्या बोल रहा? सॉरी बोल दिया ना। मैंने कहा बहुत बड़ा एहसान किए बच्चे तूने सॉरी बोलकर। मतलब तौबा भी इंटरनेशनल हो रहा है, तौबा भी इंटरनेशनल हो रहा है। सॉरी बोल दिया ना, क्या बात है। तौबा तौबा, ये बेअदबी क्यों आ रही है? ये घर से आ रही है। कसम खुदा की, आप हमारी पीठ को देखेंगे ना तो आप कहेंगे हजरत ये दाग कहां से आया? मेरे वालिद 50-50 खजूर के डंडे से मारते थे मुझको, और आज 90 साल की उम्र है, अभी भी इस तरह से खड़ा होता। क्या वो 70 साल का बूढ़ा नहीं हो, तुम्हारी जैसा हो? अदब करोगे, वली भी बन जाओगे तो इज्जत और मिलती ही चली जाएगी, अदब और बढ़ता चला जाएगा। बेअदब रहोगे ना, नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, सब तुम्हारे चेहरे पे मार दिए जाएंगे।
अल्लाह को क्या जरूरत है तुम्हारे अमल की, बताओ तो? अल्लाह को जरूरत है, क्या करेगा? गोदाम में रखेगा अल्लाह? नमाज तो तुम्हारा फायदा है ना, हज ज़कात सब तुम्हारा फायदा है। अल्लाह को रिस्पेक्ट चाहिए, अल्लाह को एहतराम चाहिए, अल्लाह को इज्जत चाहिए। आप नमाज में भी देखिए तो आप सबसे पहले कहते हैं ए अल्लाह कान पकड़ता हूं, है ना? करते हैं ना, कान पकड़ता हूं। उसके बाद तारीफ करते करते लगता है कि अल्लाह ताला नाराज है तो और झुक जाते आप। अब मुंडिया पेट में डालना बोलते कि नहीं? रुकू की हालत वो है, रुकू की हालत वही है। वो अल्लाह से आप कह रहे हैं कि अल्लाह माफ कर देना। अब अगर फिर आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला माफ नहीं किया तो अब इंतहा कर देते हैं कि अल्लाह अब तो मानना ही होगा, सजदे में चले जाते हैं। तो ये सारी हयात ताजीम की है, रिस्पेक्ट की। इबादत तो आप कह रहे हैं लेकिन ये सब एहतराम है। हुजूर की बारगाह में भी क्यों दरख्त आते थे, कदम में घुस जाते थे, चरिंद परिंद आते थे। यहां तक कि आप एक हदीस पढ़े हैं ना कि आपकी बारगाह में जानवर आकर सजदा किए तो साहबा ने पूछा हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हम ज्यादा हकदार हैं कि सजदा करें? तो अल्लाह पाक के नबी ने क्या कहा था? अगर सजदा, चलिए वो अलग चीज है, लेकिन सजदा किया ना वो रिस्पेक्ट था, इसीलिए फतवा नहीं दिया नबी ने कि ये शिरक का रिस्पेक्ट है। वो जानवर है, उन्हें हुक्म नहीं है मगर रिस्पेक्ट दिखी, तो जानवर भी रिस्पेक्ट करते हैं। अब तुम कहां हो? ये बताओ, सास के लिए तो बहुत आप बर्गर पिज्जा ले जाते हो, मां के लिए क्या कहलाते हैं? आप समझिए इन बातों को। मेरे पास ये सब शिकायत आती है, शरई अदालत में मैं बैठता हूं, वाह सास का फोन आ जाए, जी सासू मैं आ रहा हूं, और मम्मी का फोन आए, अरे क्या जी उनको नहीं बोलते, मेरे भाई हो हैं? क्या हो रहा है? याद रखना, सास के कदम में जन्नत नहीं है, मां के कदम में जन्नत है। मां नाराज तो जन्नत नाराज, बाप नाराज तो जन्नत का दरवाजा नाराज। कहां जाओगे आप? सास को उफ तक ना कहो, नहीं कहा है, मां बाप को उफ तक ना कहो। इसलिए इस बात का लिहाज करना। आज का जो पैगाम बहुत दे चुका मैं, सबसे आखिरी पैगाम, रिस्पेक्टेड बनो, एहतराम करो, इज्जत करो। करोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, वरना बस आपकी भी इज्जत नहीं हो। क्लियर बात है। कमा तदीन तो दान, हदीस के अल्फाज हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। आप इज्जत करोगे बाप की, आपकी औलाद आपकी इज्जत करेगी। आप इज्जत नहीं करोगे तो फख्र से यही बोलेगी चल चल रहने दो, देखा हूं मैं भी आप दादू की कितनी इज्जत करते हैं, दलील बन जाएगी। तो फिर आप जब तन्हाई में जाकर रोओगे ना तो समझ में आएगा, उस वक्त सिवाय अफसोस के कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा मेराज नबी का ये पैगाम अपने दिलों में लेकर जाइए, घरों में भी ये बताइए, बहन से प्यार, मोहब्बत, इबादत, रियाजत, जो कुछ भी हो। ये मोबाइल का माहौल, या अल्लाह, मतलब शहरे गोया को तुमने शहरे खामोशा बना दिया है। शहरे खामोशा तो कब्रिस्तान था, लेकिन घर में 10 जने हैं, 10 जने हाथ में मोबाइल लिए सो हैं, कौन भी किससे बात नहीं कर रहा। या अल्लाह, माँ उधर है, बाप उधर है, सास उधर है, ससुर उधर है, भैया इधर है, चचा उधर है, बहन इधर है। अल्लाह का लाज करो, क्या बात है? इतनी खामोशी, इतनी खामोशी। और उन्हीं में से अगर कोई एक चला जाए लंदन तो वह बात करेंगे मोबाइल से बाजू में था तो फेस टू फेस बात नहीं करता, अब दूर गए तो रोज मोबाइल से बात कर रहे हैं। ये कैसा? ये तो गोया मोबाइल अट्रैक्टिव चीज बन गई है आपके लिए। इसलिए प्यारे देखो, ये शैतानी काम है जो इबादत से आपको दूर करे, जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद से आपको दूर करे, समझ जाओ कि ये शैतानी काम है। तो अगर आप मोबाइल को रहमानी चीज बनाना चाहते हो तो अजान हो फौरन मोबाइल फ्लाइट मोड में करो, आप फौरन फ्लाइट मोड में करो और दौड़ो फसौला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ एकदम दौड़ो। तो समझ जाओ मोबाइल यूज करना भी सही है, वरना वो मोबाइल जहन्नम का ईंधन बनने वाला है आपके लिए। दुआ है अल्लाह ताला आपको आज की इस खुसूसी मजलिस के सबको दुफैल में आप सबको माफ फरमाए, हम सबको माफ फरमाए। जो बरकत और सादात अल्लाह ताला ने रखे हैं वो हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाह सय्यिदिल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।